Yeah, yesterday I have given you this particular numerical as a homework. So please tell me what is waiting time, response time, and turnaround time. Yeah, average waiting time is what is average waiting time is? Average waiting time is 7 and average turnaround time is 11.66. Is it so? सभी का यही आया है? Everybody got the same answer or different? Some other answers you got? अरे हाँ कि ना, अलग आए हैं या सेम आए हैं? डिफरेंट वन क्या आया है बताओ? एवरीबडी शुड पोस्ट देयर आंसर्स. जरूरत पड़ती तो आई विल सॉल्व इट. शैल आई सॉल्व दिस? मुझे सॉल्व करना है, मुझे सॉल्व करना चाहिए. ओके फाइन. सो लेट अस सॉल्व इट फर्स्ट. ओके देन विल मूव ऑन राउंड रॉबिन. ओके. ओके लेट अस स्टार्ट विद 0. Gantt chart. Now check which process is arrived at 0th second. So process P1 is arrived at 0 second, but it has priority 3. Okay. But at 0th second, we don't have any option. So instead of wasting the CPU, what we are doing, we are allocating the CPU to the process P1. Okay. Then please check when the other process arrived. Other process has arrived at 1 second. Okay. So what I am doing, 4 में से 1 सेकेंड एग्जीक्यूट हो गया, बचा 3 सेकेंड. ओके. यहाँ पे भी मैं 1 लिख लेता हूँ. ओके. नाउ अराइवल टाइम इज 1 सेकेंड. टाइम कहाँ से वो पता चला? यहाँ पे द टाइम इज 1 सेकेंड नाउ. एंड वी हैव अनदर प्रोसेस P0 which is having higher priority than the P1. Okay. We have another process P0 which is having priority 2, whereas process P1 has priority 3. Higher priority is 2, that is process P0. So what we are doing, we are applying preemption over here. Preemption मतलब CPU जहां पे ट्रांसफर किया जाता है forcefully. So here we are forcefully transferring the CPU from process P1 to process P0. Okay. Why P0? Because arrival time 1 था उसका. यहाँ पे देखा हमने arrival time 1 हुआ है. Process P0 is coming to the picture which is having higher priority, that is priority 2. So CPU is allocated to process P0. Okay. -1 बचा 5. ओके. यहाँ पे 1 + 1, क्योंकि हमने उसे 1 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट किया, टाइम हो गया 2. एट टाइम इंटरवल 2 सेकेंड पे नई प्रोसेस आ रही है, अवेलेबल हो रही है, जिसका प्रायोरिटी 1 है, दैट इज प्रोसेस P5.
P5. Okay, and its burst time is 1 second. Okay, so 2 + 1 हो गया 3, और यहाँ पे 1 - 1 that is equals to 0. Okay, so P5 is terminated. Okay, terminate हो गया, खत्म हो गया. Done. Then check. Process P5 priority 1 process is completed its execution and terminated. Now check priority 2 process. Priority 2 process कौन सी है हमारी? ये बची हुई है P0. इसकी प्रायोरिटी 2 थी, लेकिन अभी भी 5 सेकंड बचा है. CPU is located to P0 for next 5 सेकंड, क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम बचा हुआ 5 है. So 3 + 5 is 8. Okay, यहाँ पे I can say 5 - 5 is equals to 0. Okay, इसका भी एग्जीक्यूशन पूरा हो चुका है. ठीक है. Now, अब let's come to the next process. Check के प्रायोरिटी के हिसाब से. Okay, P3 is also having priority 2, जिसका arrival time 4 था. Now time is already 8 seconds, so you can execute P3 because its priority is higher. P3, it requires 2 seconds, so 8 + 2 is 10. 8 + 2 is 10, and here 2 - 2 is equals to 0. P3 is also finished with its execution. Okay, now let's come to the another priority. Priority 3 किसका है? Yes, P1 का. Out of 4, 1 second we have already executed, 3 seconds is remain. So here CPU is transferred to process P1 for 3 seconds. So 10 + 3 is 13. 10 + 3 is 13. And here 3 - 3 is equals to 0. Okay. Then check the priority. Here priority of process P2 is 4, whereas priority of process P4 is 5. अराइवल टाइम कितना है? 5 सेकेंड, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. सो सीपीयू इज एलोकेटेड टू प्रोसेस P2 फॉर कितना सेकेंड? 8 सेकेंड. सो 13 + 8 is 21. Okay, 8 - 8 is equals to 0. P2 is also finished with its execution. Then बचा क्या है? प्रोसेस P4. So CPU is allocated to process P4 for how much duration? 7 seconds. 21 और 7, that is 28. 7 - 7 is 0. This is how your Gantt chart will be. Okay. If you would like to check whether your Gantt chart is correct or not, please make a sum of all burst time. Burst time का sum करिए. It should be equals to the last value of your Gantt chart. Please check this कि क्या हमारा सही आ रहा है या नहीं. Please check the burst values. Okay, burst values check करिए आप. Six plus 4 is 10 plus 8 18 plus 2 8 और 2 10, मतलब 20. 27 plus 1 28. Let's see, 28. So it means that the Gantt chart is correct, applicable for all the algorithms of CPU scheduling. सभी के लिए ये applicable होता है. Okay, now just calculate the waiting time. Okay, calculate the waiting time.
Uh, check waiting time for process P0. Process P0 को CPU कब मिला? Process P0 got the CPU at 1 second. So here 0 से लेके 1 तक वो वेट कर रहा था, प्लस 1 से लेके 2 तक वो खुद ही एग्जीक्यूट हो रहा था, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट 2 से लेके 3 तक कोई और एग्जीक्यूट हो रहा था, सो इट मीन्स दैट 3 minus 2 is a waiting time for P0 minus its arrival time. Arrival time is 1 second. Just check it out. The overall waiting time is 1 second only. Okay. Overall waiting time is 1 second. For P1, check. P1 CPU तुरंत allocate हो गया था, means 0, plus 0 से 1 तक P1 was executing. Then from 1 to 10 P1 was waiting. 1 से लेके 10 तक P1 was waiting. So what I'm doing, 10 minus 1. 10 minus 1. Okay. 10 मतलब क्योंकि 10 को 10 at time 10 second it got the CPU again. That's why 10 minus 1. Why 1? 0 से लेके 1 तक वो खुद ही एग्जीक्यूट हो रहा था. 1 से उसका वेटिंग स्टार्ट हुआ कब तक? 10 तक. Minus its arrival time. Arrival time is 0. So total waiting time is 9 seconds. Calculate about P2. When P2 got the CPU, P2 got the CPU at 13 minus its arrival time. Arrival time is 5, which is equals to 8. Then for P3, when CPU gets to the P3, 8 second, 8 minus uska arrival time, which is 4, means waiting time is 4. For P4, just check when P4 get the CPU at 21 minus the arrival time. Arrival time कितना है? 3 second. 21 minus 3 is 18. Finally, for P5, when P5 gets the CPU at 2 second, so 2 minus its arrival time. Arrival time is also 2 seconds. So 2 minus 2 is 0. Okay. Just make a sum. Calculate the average. That is average waiting time for priority scheduling with preemption. Okay. Then calculate the response time. Response time, we know that when the process gets the first response, so P0 gets the first response at 1 minus arrival time, that is 1 is equals to 0. When P1 gets the response at 0 minus arrival time 0, that is equals to 0. When P2 got the first response, P2 got the first response at 13 minus uska arrival time of P2 is 5 equals to 8. P3, when P3 gets the first response, P3 gets the first response at 8 minus arrival time 4, which is equals to 4. P4, when it gets the first response, 21 minus arrival time 3, which is equals to 18. And finally, P5 got the first response at 2 minus arrival time 2 is equals to 0. This is what the response time. Now, what is turnaround time? Turnaround time is simply time interval between the submission and termination. So when P0 was terminated, P0 terminated at 8 minus uska arrival time, that is 1, total is 7. Then P1, when P1 terminated, P1 terminated at 13 minus uska arrival time, that is 0, equals to 13. Then for P2, P2 terminated at 21 minus arrival time, that is 5, which is equals to 16.
P3, when P3 terminated at 10 minus its arrival time 4, which is equals to 6. P4, when P4 terminated at 28 minus its arrival time, that is 3, which is equals to 25. And finally, P5, when P5 terminated at 3 minus its arrival time कितना है उसका 2, which is equals to 1. That's it. This is what average turnaround time. Now just make an addition and tell me what is the average waiting time, average response time, and average turnaround time. कितना आ रहा है average? First tell me, is your Gantt chart matches with what I have drawn? क्या आपका Gantt chart मैच हुआ है मेरे Gantt chart से? हाँ या ना? नो सर। क्यों, कहाँ गड़बड़ हुई है? अच्छा, आपको आपकी गलती समझ में आई है कहाँ पे? तो यस सर। कहाँ पे? सर P1 और P0 में। P1 और P0 में पहले इसमें क्या, what mistake you have done? क्या किया, क्या गलती सर की मैंने आप लोगों ने? P0 को सर P1 को पूरा अलोकेट किया स्टार्टिंग में ही। क्यों क्यों क्यों? अगर वन, इसीलिए तो हमारा प्रीएम्प्टिव है ना। प्रीएम्पशन का मतलब क्या है? जैसे ही हायर प्रायोरिटी वाला आ जाएगा, लोअर प्रायोरिटी वाले को हम भगा देंगे। यही हुआ है यहाँ पे। व्हाट आई हैव एक्सप्लेन नाउ, हैव यू अंडरस्टूड इट? यस सर। इधर तुषार, यस सर। समझ में आया है? तुम्हारा भी गलत हुआ था। यस सर। ओके, इधर रोहित, और किसी ने किया था? रोहित, अनुजा, रश्मि, काजल, धनश्री, हर्षद, मोहित चौधरी, किसी ने किया था क्या? किसी ने किया ही नहीं था शायद। ओके, नाउ जस्ट टेल मी द आंसर, फाइनल आंसर्स। व्हाट इज एवरेज वेटिंग टाइम? अरे वो पॉइंट में वैल्यू निकालना, वो ऐसी वैल्यू नहीं रखना 34/4 वगैरह, 34/3 ऐसे नहीं निकालना, पॉइंट में वैल्यू निकालना। जस्ट टेल मी व्हाट इज एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज रिस्पांस टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। पोस्ट मैसेज क्विकली। ये क्या है? 11.33 क्या है? 6.6 is average waiting time. Turnaround time is 11 point something. 11.33 is turnaround time. And what is response time? Average response time. है? Average response time 3 है या 5 है? 5 है ना? Okay, fine. I hope everybody, you have got it. You can solve it by your own now. This is the priority scheduling with preemption. With preemption, बार बार आपको मैं याद दिला रहा हूँ. This is priority scheduling with preemption. Okay. Now let us apply a round robin algorithm. Okay. New algorithm we are interested in, a round robin. Okay. What round robin algorithm suggests? A round robin suggests each process
gets a small unit of CPU time, okay, जिसे हम टाइम क्वांटम कहेंगे या टाइम स्लाइस कहेंगे, जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल क्यू से, ओके. So for that particular time quantum, that particular time slice, every process will go on executing, and as the time slice expired, CPU will be transferred to other processes. Okay, just take a look how this works. ये दिया हुआ है process P0, P1, P2, P3. Burst time is given, arrival time is also given. Now we have to apply a round robin algorithm over here. Okay, okay. अच्छा, one more thing, without time quantum this is not possible. अच्छा, कई बार whenever in your examination, ऐसा तो होगा नहीं अभी आपको, but in your in the routine exams of RTMNU, sometimes it has happened that examiner has forget to mention the quantum value or a time slice value. So in that case, you have to assume the time quantum, you have to mention what time slice you have assumed. Here the time slice given is 2, q is equals to 2, small q hota hai ye. Okay, quantum given is 2 seconds. Okay, so let us start. Gantt chart starts with 0. Arrival time 0 है process P0 का, so CPU is allocated to process P0, and the restriction is it is allocated for 2 seconds only. Okay, everybody should give attention. For 2 seconds CPU is given to the process P0. So 6 में से 2 execute हो गए हैं, बचे कितने? 4. Then CPU is transferred to process P1. Okay, CPU is transferred to process P1 for how much time? For 2 seconds only. So 2 plus 2 is 4. 2 plus 2 is 4. और यहाँ पे 2 सेकेंड एग्जीक्यूट हो गया, इसलिए I have subtracted 2, बचा 2. Okay, now check next process P2. अच्छा, ये सब चेक करते हुए यू नीड टू फोकस, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अराइवल टाइम की क्या प्रोसेस आई है या नहीं. अब यहाँ पे प्रोसेस आ चुकी थी, so that's not a problem. Okay, P2, for P2 also CPU will be available for 2 seconds. Okay, 4 plus 2 6, इसमें से 2 माइनस किया, बचा 6. Now CPU will transfer to process P3 again for 2 seconds only. 6 plus 2 is 8. Here 2 minus 2 is equals to 0. अच्छा, मतलब प्रोसेस P3 का काम खत्म हो चुका है. Now round robin means again start from the first process. Let us move to the first process P0 again. P0 for how much time? For 2 seconds only. 8 plus 2 is 10, और यहाँ पे 4 में से अगेन 2 सेकेंड एग्जीक्यूट हो गया, बचा 2. Again we'll move to the process P1 here. P1 for 2 seconds. 10 plus 2 is 12. Subtract 2 minus 2, 0. P1 का काम भी खत्म हो गया है. Now बचा क्या है? P2. Next process क्या है? P2. CPU will be allocated to P2 for how much time? For 2 seconds only. 6 minus 2 is equals to 4, और यहाँ पे 12 plus 2 कितना होता है? 14. 14. Okay, then नीचे प्रोसेस है क्या कोई? नहीं, P3 is already finished. Again round robin, शुरू से फिर से शुरू करो. P0 for 2 seconds, so 14 plus 2 is 16. अच्छा,
somebody may have a question कि अगर 2 सेकेंड्स की जगह यहाँ पे बर्स्ट टाइम इसका 5 ही होता, so what we'll have to do, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 2 गए 1, तो यहाँ पे हम उसे सिर्फ 1 सेकेंड के लिए अलोकेट करते थे। अब यहाँ पे लेकिन 2 2 है, तो इट इज 0, P0 is terminated, P1 ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका है, बचा क्या P2, so CPU is allocated to P2 for 2 seconds only, so 16 plus 2 is 18 and minus 2 is 2। और कोई प्रोसेस है क्या, चेक आउट नहीं है, again CPU will be allocated to process P2 only, 18 plus 2 is 20। एटीन प्लस टू इज 20, यहाँ पे 2 minus 2 हमने कर दिया 0। ओके, नाउ चेक वेदर अवर गैंट चार्ट इज करेक्ट और नॉट। क्या कहा था मैंने, मराठी ज्याला ताळा म्हणतात, ताळा। क्रॉस चेक, हाउ यू क्रॉस चेक, जस्ट मेक अ सम ऑफ बर्स्ट टाइम, 6 plus 4 is 10, 8 plus 2 is 10, 10 plus 10 is 20। हमारे गैंट चार्ट का लास्ट वैल्यू भी 20 होना चाहिए, जो है कि नहीं, यस, the last value of Gantt chart is 20, it means that whatever the transactions, whatever the things we have made is absolutely correct। Okay, now calculate the waiting time। Okay, P0, how much time it waits, पहले 0, then plus, अब प्लीज चेक 2 से लेके 8 तक it was waiting, so 8 minus 2, क्या कह रहा हूं मैं, फ्रॉम 2 to 8 it was waiting, मतलब 8 minus 2 that is 6 second it was waiting। okay, प्लस 8 से लेके 10 तक वो खुद ही एग्जीक्यूट हो रही थी, तो दैट्स नॉट अ वेटिंग टाइम। देन 10 से लेके 14 तक इट वाज अगेन वेटिंग, सो 14 minus 10, 14 minus 10 मतलब 4 सेकेंड तक वो फिर से यहाँ पे वेट कर रही थी प्रोसेस, माइनस उसका अराइवल टाइम विच इज 0। कितना आया, 8 minus 2 is 6, 14 minus 10 is 4, so 6 plus 4 is 10, waiting time is 10 over here। now let us check about P1। P1 यहाँ पे 2 सेकेंड तक वेट कर रहा था, देन 2 से लेके 4 तक P1 was executing, then from 4 से लेके 10 तक it was waiting, so 10 minus 4 plus 10 से लेके 12 तक P1 itself was executing, then from, अच्छा इसके बाद है ही नहीं, माइनस उसका अराइवल टाइम इज 1, that is 10 minus 4 is 6 plus 2 is 8, 8 minus 1 is 7। check for P2। P2 initially it was waiting for 4 second, plus 4 से लेके 6 तक वो खुद ही एग्जीक्यूट हो रहा था, देन 6 से लेके 12 तक it was waiting, so 12 minus 6 it was waiting, plus 12 से 14 वो खुद ही एग्जीक्यूट हो रहा था, बट 14 से 16 it was waiting, so 16 minus 14, that is 2 second it was waiting, minus उसका अराइवल टाइम इज 2 seconds। अच्छा उसके बाद वो खुद ही एग्जीक्यूट हो रहा था, तो नॉट अ वेटिंग टाइम। जस्ट कैलकुलेट कितना हो रहा है, 4 plus 6 is 10, 10 plus 2 is 12, minus 2, 12 minus 2 is 10। okay, and finally for P3, P3 was waiting for how much time, ये देखो 6 minus उसका अराइवल टाइम that is 3, so
total waiting time is 3 only. This is what the waiting time. Just calculate the average. अभी समजत Now, नाहीये oh, कोणाला नाही समजत आहे? सर. मलाही धनश्री. नाही समजत आहे. इकडे दामिनी वगैरेला आम्हाला कोणालाच नाही समजत आहे सर. किती मायनस काय हाँ करत सर, आहे नहीं समझना। क्या नहीं समझ रहे इसमें? सर ये कितने माइनस प्लस कैसे कर रहे हो वो नहीं समझ में आ रहा सर। ले अरे रहे हो क्या कहाँ पे माइनस कर रहे हो और कौन किस में से क्या माइनस हो रहा है कुछ भी नहीं समझ रहा है. पूरा कंफ्यूज हो अरे गए. भगवान, कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग. कंफ्यूज नहीं होना है. अच्छा, गैंट चार्ट समझ में आया क्या, पहले बताओ. हैव यू गॉट द गैंट चार्ट? पहले ये बताओ, ये नीचे जो ड्रॉ किया है गैंट चार्ट, ये समझ में आया कैसे ड्रॉ किया है? नहीं Yes, आया sir. सर. नहीं आया मेरे को तो वो भी समझ में नहीं आया. हाँ, तो इसके लिए रोज क्लासेस अटेंड करने पड़ते हैं. सर कर तो रही हूँ ना अभी भी मेरे को पता है. अभी कर रही है? ये पहले बताया था मैंने गैंट चार्ट कैसे ड्रॉ करना, और अभी भी तो बताया कैसे ड्रॉ किया है. ये बहुत सिंपल है, जस्ट अ राउंड रॉबिन. दामिनी तुझे समझ में आया गैंट चार्ट? हाँ सर, गैंग चैट समझ में आ गया। और कितनों को नहीं समझा मुझे अभी बताओ. दिस इज ऑनेस्ट ना, दैट इज गुड. और समझ गया कितने लोग सर। हैं जिनको नहीं वाले आई एम इंटरेस्टेड, जिनको नहीं समझ में आएगा गैंट चार्ट. है कोई जिसको गैंट चार्ट नहीं समझ में आया? कोई नहीं है, बाकी सब समझ में आ गया. Anybody is there who is not able to understand the Gantt chart? तो अकेली है क्या धनश्री? सर बहुत से लोगों को समझा नहीं है लेकिन वो बता नहीं रहे हैं. क्यों नहीं बताते? मैं तो बहुत ऐसा तो कुछ डाटा वाटा भी नहीं हुआ, तो बहुत अच्छे से ये कर रहा हूँ. चलो ठीक है, वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग द गैंट चार्ट फर्स्ट. पहले गैंट चार्ट रिपीट करता हूँ. कैलकुलेशंस बहुत आसान है, बहुत आसान, अच्छी नहीं है. थोड़ा सा दिमाग चालू रखना है, ठीक है? नथिंग डिफिकल्ट, जस्ट हैव अ कंसंट्रेशन. ठीक है, ध्यान दो. ये सब मैं क्लियर कर रहा हूँ. I need to delete the values only. ओके. अच्छा, अल्गोरिदम क्या है ये समझना पहले जरूरी. अल्गोरिदम क्या कहता है कि हर प्रोसेस को सिर्फ 2-2 सेकेंड्स के लिए, मतलब जितना क्वांटम वैल्यू दिया है, execute all the processes for a given quantum value. Okay, here quantum value is given as 2. So each process will execute for 2 seconds and then there is a chance for next process. Okay, मैंने बूंदी के 500 लड्डू बनाए धनश्री, और सारे आईटी डिपार्टमेंट के बच्चे लाइन में लग गए. बट कंडीशन ये था, कंडीशन क्या था कि एट ए टाइम सबको एक ही लड्डू मिलेगा. ओके, और अगर बचे तो यू कैन रीस्टार्ट अगेन. सो लाइन से सब लोगों को मैं एट ए टाइम एक एक लड्डू देता गया, एक एक लड्डू देता गया, एक एक लड्डू देता गया. जैसे ही 174 बच्चे हैं हमारे डिपार्टमेंट में आज की डेट में, 174 बच्चों को जैसे ही लड्डू मिल गया, अगेन जिसको सबसे पहले मिला था, अब वो पूरा लाइन घूम के आया है अगेन. नाउ जैसे धनश्री जोड़ पहले नंबर पे थी, उसको पहले मिला, फिर बाकी मनीषा को, इसको, उसको, पूरे सबको 174 लोगों को मिले. अगेन क्लॉक हैज कंप्लीटेड. जैसे क्लॉक में बजते ना, 12 से स्टार्ट होता है, फिर से 12 बजते हैं, फिर स्टार्ट होता है, सेम वे. ओके, धनश्री को सबसे पहले दिया था, बाकी सबको 173 लोग जो है, धनश्री प्लस रिमेनिंग 173, सबको एक एक लड्डू दिया, एक एक लड्डू दिया. नाउ अगेन अब धनश्री का नंबर फिर से आ गया.
अब फिर से क्या करूंगा, फिर से धनश्री को एक लड्डू दूंगा। अगेन सीक्वेंस गो ऑन कंटिन्यूइंग, कब तक, जब तक मेरे पास लड्डू है तब तक। ओके, ये है कंसेप्ट। अब प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम इज अवेलेबल विथ अस, क्वांटम वैल्यू इज अवेलेबल विथ अस। क्वांटम इज 2 सेकेंड्स, क्वांटम वैल्यू क्या है, 2 सेकेंड्स। सो एट फर्स्ट चेक कौन सी प्रोसेस अवेलेबल है। 0th सेकेंड पे अराइवल टाइम, उसका आने का समय 0 सेकेंड पे, लाइन जब लगना चालू हुई तो सबसे पहले प्रोसेस कौन सी अवेलेबल थी, P0 अवेलेबल थी। ओके, सबसे पहले प्रोसेस कौन सी अवेलेबल थी, P0 अवेलेबल थी। इसीलिए सीपीयू किसको मिला, P0 को मिला। CPU is allocated to process P0, but as per the rule CPU कितने सेकंड के लिए allocate होता है, फॉर द क्वांटम वैल्यू ऑफ 2 seconds ओनली। सो 0 से लेके, ये नीचे के 0 से लेके P0 एग्जीक्यूट हुआ कितने समय तक, 2 सेकेंड्स के लिए। कितने सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए। अच्छा, उसका बर्स्ट टाइम रिक्वायर्ड है 6 सेकेंड, जिसमें से, अच्छा बर्स्ट टाइम मतलब क्या है, कितने समय तक उसको सीपीयू मिलना चाहिए। बर्स्ट टाइम इंडिकेट्स द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम सीपीयू शुड बी अलोकेटेड टू द प्रोसेस। ओके, कितने समय तक उसको सीपीयू मिलना चाहिए। सो 6 सेकेंड तक P0 को सीपीयू मिलना चाहिए, जिसमें से 2 सेकेंड अभी हमने दे दिया। ओके, सो 6 माइनस मैंने यहाँ पे 2 किया, बचा 4। अभी भी 4 सेकेंड का सीपीयू उसको रिक्वायर्ड है, चाहिए है। यहां तक कोई डाउट धनश्री? नो सर। बाकी और जिनको नहीं समझ में आया है, दामिनी, यस सर, सिमरन, क्लियर। सिमरन है क्या, सिमरन है क्या रे? ये सर समझ रहे। समझ रहा है ना? हाँ। हाँ। ओके, नाउ राउंड रॉबिन का नंबर, मतलब राउंड रॉबिन मीनिंग इज दैट ओनली, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। सो वंस P0 टर्न इज ओवर, वी आर शिफ्टिंग टू नेक्स्ट प्रोसेस P1। अच्छा, लेकिन चेक हमें करना है कि क्या उसका अराइवल टाइम है। हाँ, अराइवल टाइम 1 है, और टाइम कितना हुआ है, 2 सेकेंड्स, मतलब P1 इज अवेलेबल विथ अस। ओके, सो सीपीयू किसे मिलेगा, प्रोसेस P1 को। अच्छा, कितने सेकेंड तक, हमारा नियम फिक्स है कि सिर्फ 2 सेकेंड तक ही मिल सकता है। ओके, सो ये 2 + 2 वैल्यू हो गई 4। ओके, और P1 में से हमने कितना एग्जीक्यूट किया, 4 रिक्वायर्ड है, लेकिन हमने एग्जीक्यूट किया सिर्फ 2 सेकेंड्स, और 2 सेकेंड बचे हैं, और 2 सेकेंड बचे हैं। ओके, अच्छा, ये 8 की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 5, थोड़ा सा समझने के लिए और आसान होगा। ओके, 4 में से 2 सेकेंड एग्जीक्यूट किया, बचा 2। देन चेक आउट फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे सीक्वेंस में क्या है, P2 है। चेक फॉर द अराइवल टाइम, क्या अवेलेबल है, अराइवल टाइम 2 ही है, और नीचे टाइम हो गया है 4 सेकेंड, मतलब इट इज अवेलेबल फॉर एग्जीक्यूशन। सो P2, CPU इज एलोकेटेड टू P2। अच्छा, कितने सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जस्ट फॉर 2 सेकेंड। सो 4 + 2 हो गया 6, और 5 में से कितना सेकेंड एग्जीक्यूट हमने किया, 2 सेकेंड, बचा 3, बचा कितना, 3। ओके, अब नियम के हिसाब से पहले धनश्री हो गई, फिर मनीषा हो गई, फिर दामिनी हो गई, अब तुषार। ठीक है, ये P3 तुषार। चेक करो, अराइवल टाइम 3, हाँ यहाँ पे टाइम क्या हो गया है, 6। सो अवेलेबल हो चुका है। सीपीयू इज एलोकेटेड टू द नेक्स्ट प्रोसेस, जो है P3। अच्छा, कितने सेकंड के लिए, सिर्फ 2 सेकंड के लिए। सो 6 + 2 इज 8, 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट किया। अच्छा, यहाँ पे 2 ही है लकीली वैल्यू, सो 2 - 2 इज 0। इसका मतलब प्रोसेस P3 इज फिनिश। 0 हो गया, मतलब उसको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम था सीपीयू का, वो मिल गया, उसका पेट भर गया। ओके, तुषार सिर्फ एक ही लड्डू खा सकता है, तुषार को एक लड्डू मिल गया, उसका पेट भर गया, अब वो फिर से लाइन में नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? यहां तक सबको क्लियर है या नहीं? यस सर।
धनश्री? हाँ सर, अभी क्लियर है। पक्का? हाँ हाँ। अच्छा, ओके। लेट अस अज्यूम कि तुषार हमारे लाइन में लास्ट था। ओके, वो लाइन से निकल गया, घर चला गया। ओके, अब फिर से पहला आ गया, मतलब फिर से धनश्री आ गई। सो सीपीयू विल बी अलोकेटेड टू द फर्स्ट प्रोसेस P0। ये राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन मतलब ये लाइन से ये P3 के बाद फिर से P0। ओके, सो सीपीयू इज अलोकेटेड टू धनश्री, दैट इज P0। अच्छा, फॉर कितने सेकेंड? फिक्स है, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड मतलब 8 + 2 इज 10, 8 + 2 इज 10। अच्छा, बच्चे कितने हैं? 4। 4 में से 2 अभी हमने एग्जीक्यूट किया, अगेन 2 बचा। ओके, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सी है? P1। सो सीपीयू इज एलोकेटेड टू P1। अगेन कितने सेकेंड्स? सिर्फ 2 सेकेंड। सो 10 + 2 इज 12। और यहाँ पे 2 में से 2 एग्जीक्यूट कर लिए हमने। अब कुछ बचा है क्या? नहीं। P1 विल बी टर्मिनेटेड, चली गई। अच्छा, नीचे आओ। कौन सी प्रोसेस है? P2। सो सीपीयू इज एलोकेटेड टू P2। कितना सेकेंड? अगेन सिर्फ 2 सेकेंड। सो 12 + 2 इज 14। 2 सेकेंड मतलब 3 में से 2 सेकेंड हमने एग्जीक्यूट कर लिए, बचा 1 ही सेकेंड। ओके, अब क्या P3 अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है, तो वापस जाओ P0 के पास। सो सीपीयू इज एलोकेटेड टू P0। कितने सेकेंड? अगेन सिर्फ 2 सेकेंड। सो 14 + 2 इज 16। 14 + 2 इज 16। 2 सेकेंड, इसलिए -2 किया, प्रोसेस का एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट हो गया। चेक P1 है क्या? नहीं, वो तो ऑलरेडी 0 हो गई है। P2, हाँ, 1 सेकेंड स्कोर रिक्वायर्ड है। सो सीपीयू इज एलोकेटेड टू P2। अच्छा, फॉर कितना समय? फॉर 2 सेकेंड तक हम कर सकते हैं, बट उसको रिक्वायर्ड ही नहीं है। मैं 1 लड्डू दे सकता हूँ, बट उसको आधा ही चाहिए, तो जबरदस्ती 1 दूंगा क्या? नहीं, आधा ही दूंगा। सो 16 + 1 इज 17। ये यहाँ पे 1 - 1 इज इक्वल टू 0। लास्ट वाला डिलीट। अब बताओ, कोई डाउट? गैंट चार्ट में कोई डाउट? धनश्री, दामिनी, नो सर। समझ में आया पूरा? एवरीबडी गॉट इट? कोई मुश्किल है इसमें? एनीथिंग डिफिकल्ट? नथिंग डिफिकल्ट। ओके, check. Now we will calculate waiting time. Okay. अब ध्यान दो, अब फिर से ध्यान दो। मैं क्या कह रहा हूं, हमें कैलकुलेट क्या करना है? वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम मतलब क्या है कि कौन से समय में प्रोसेस के पास सीपीयू नहीं था, वो वेट कर रही थी लाइन में। जिस समय उसको लड्डू मिला वो वेटिंग टाइम नहीं, वो तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम हो गया। बट अदर देन लड्डू मिलने का टाइम, जब तक बाकी के खत्म नहीं होते, बाकी की लाइन आगे नहीं सरकती, तब तक प्रोसेस क्या कर रही थी? बेचारी वेट कर रही थी, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी। वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है। ओके, गैंट चार्ट शो करता है हमें एग्जीक्यूशन टाइम। ओके, चेक करो अब। P0 को सीपीयू गैंट चार्ट देख के, गैंट चार्ट देख के ही समझ में आता है, कोई बाकी दूसरा रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, P0 को सीपीयू कब मिला? 0 पे ही मिल गया था, जैसे ही वो आया उसको सीपीयू मिल गया था यहाँ पे। और 0 से लेके 2 तक वो खुद एग्जीक्यूट हो रहा था। अब खुद एग्जीक्यूट हो रहा था मतलब उसको लड्डू मिल रहा था, तो वो वेटिंग टाइम नहीं हुआ उसके लिए। बट उसके बाद 2 से लेके 8 तक, 2 से लेके 8 तक, वाई 8 तक? बिकॉज 8 को फिर से सीपीयू मिल गया था, 8 को उसे फिर से सीपीयू मिल गया था, इसलिए 8 तक। सो फ्रॉम 2 to 8 सेकेंड P0 was waiting. ओके, तो इसीलिए 8 - 2। ओके, वाई 8 - 2? क्योंकि 0 से लेके 2 तक वो खुद ही एग्जीक्यूट हो रहा था। 2 से लेके 8 तक
अदर देन P0 कोई और एग्जीक्यूट हो रहे थे। कौन हो रहे थे इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। दैट्स वाई 8 - 2, ओके, प्लस अब 8 से लेके 10 तक वो खुद ही एग्जीक्यूट हो रहा था, तो इट इज नॉट अ वेटिंग टाइम। बट 10 से लेके जब मैं देख रहा हूं 14 तक, इट वाज आल्सो वेटिंग, ओके। सो 14 माइनस 10, ओके, 14 माइनस 10। अच्छा, किसी को अगर लगता है कि ये बहुत सिंपल तरीका है, अगर इसमें भी कोई तकलीफ है तो यू कैन डायरेक्टली ऐड। 8 से लेके 10 तक वो खुद ही एग्जीक्यूट हो रहा था। ये 10 प्लस 10 से 12 मतलब 2, और 12 से 14 मतलब 4। यू कैन डायरेक्टली राइट 4 ऑल्सो, ओके। आपको अगर लगता है आप डायरेक्टली कर सकते हो तो यू कैन राइट डायरेक्टली 4 ऑल्सो। अब अगर मुझे कोई करने को कहेगा तो मैं डायरेक्टली 4 लिखूंगा, बट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग स्टेप बाय स्टेप, ओके। व्हाट वी हैव अंडरस्टूड हियर इज 0 से 2 खुद एग्जीक्यूट हो रहा था, देन 10 सॉरी 8 - 4 इट वाज, सॉरी 8 - 0 2 2 नॉट 4, 8 - 2, ये 0 से 2 खुद एग्जीक्यूट हो रहा था, देन 8 - 2 इट वाज वेटिंग, देन नेक्स्ट P0, ये 14 - 10 इट वाज वेटिंग, माइनस, अच्छा अराइवल टाइम हमेशा माइनस करना है, माइनस उसका अराइवल टाइम जो 0 था। कैलकुलेट कितना करो, कितना हो रहा है, 8 - 2 is 6 प्लस 14 - 10 is 4, टोटल 10। ये समझ में आया कि नहीं बताओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हैव यू गॉट इट? सर, यस सर। Yes, sir. सबको समझ में आया है? ओके, जस्ट वेट फॉर P1। P1 0 से लेके 2 तक वेट कर रहा था, उसको CPU 2 पे मिला, प्लस 2 से लेके 4 तक खुद ही एग्जीक्यूट हो रहा था, देन फ्रॉम 4 to 10 it was waiting, so 10 minus 4 it was waiting, 10 से लेके 12 तक खुद ही एग्जीक्यूट हो रहा था, so that's not a problem, माइनस उसका अराइवल टाइम 1, so 10 minus 4 is 6, 6 plus 2 is 8, 8 minus 1 is 7, then do it for P2। P2 का क्या था, 4 सेकंड तक वेट कर रहा था, ये देखो 4 सेकंड तक वेट कर रहा था, सो 4 प्लस 4 से लेके 6 तक खुद ही एग्जीक्यूट हो रहा था, देन 6 से लेके 12 तक इट वाज वेटिंग, सो 12 माइनस 6 इट वाज वेटिंग, ओके। अच्छा 12 से लेके 14 तक खुद एग्जीक्यूट हुआ, देन फिर से गैप आया, 16 - 14, और कैन आई राइट डायरेक्टली 2? मैं डायरेक्टली 2 लिख सकता हूँ क्या? ये 14 से लेके 16 तक इट वाज वेटिंग, so 16 - 14 is 2, so I am directly writing 2। Will it be okay for you guys? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। माइनस, अच्छा कि समझने में दिक्कत आएगी, बेटर what to write, 16 - 14, 16 - 14, why 16 - 14? ये 12 से लेके 14 तक खुद ही एग्जीक्यूट हो रहा था, 14 से लेके 16 तक कोई और एग्जीक्यूट हो रहा था, P0 एग्जीक्यूट हो रहा था, कोई और एग्जीक्यूट हो रहा था, so that's why I can say that P2 was waiting, so 16 - 14 minus उसका arrival time, that is 2। calculate the value, 4 plus 6 is 10 plus 2 is 12 minus 2 is 10। finally for P3 को CPU कब मिला, 6 पे, 6 माइनस उसका अराइवल टाइम दैट इज 3, so total is 3। calculate the sum of all the waiting time divided by 4, you will get the average waiting time। have you got it now? क्या Yes, sir. माइनस किया है, कैसे माइनस किया, यस सर। समझा क्या रे पक्का? हाँ। कुछ डिफिकल्ट था क्या? नहीं।
तो फिर तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा था? बाकी लोग, पब्लिक, दामिनी? ओके। रिस्पॉन्स टाइम हम क्या डेफिनेशन थे? जब सबसे पहले रिस्पॉन्स मिला वो 0 माइनस उसका अराइवल टाइम 0, दैट इज 0। P1 को सबसे पहले रिस्पॉन्स कब मिला? 2 पे माइनस उसका अराइवल टाइम 1, दैट इज इक्वल टू 1। P2 को सबसे पहले रिस्पॉन्स कब मिला? 4 पे माइनस उसका अराइवल टाइम 4 माइनस 2 इज 2। P3 को सबसे पहले रिस्पॉन्स कब मिला? 6 माइनस उसका अराइवल टाइम 3, दैट इज इक्वल टू 3। हो गया? एनी डाउट? कोई शक किसी को? नहीं। नहीं, बहुत सिंपल। टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम मतलब प्रोसेस आया कब और गया कब। सो सबसे पहले देखो P0 गया कब मतलब टर्मिनेट कब हुआ? when P0 was terminated at 16 minus arrival time, that is 0, equals to 16. Then P1 when P1 terminated, चेक करो, ये 12 पे 12 माइनस उसका अराइवल टाइम 1, which is equals to 11. Now P2 when P2 terminated 17 minus उसका अराइवल टाइम, that is 2, equals to 15. Finally P3 check करो when terminated 8 minus arrival time 3, which is equals to 5. Just make a sum, calculate the average. Tell me what is average waiting time, average response time, and average turnaround time. Seven 7.5 average waiting time. Okay, 7.5. Response time? 1.5. Okay. And turnaround time is? Okay, that's great. Turnaround time is 12.5. It is very simple. Okay. Can you solve by your own one more numerical? एक सॉल्व Yes, कर sir. सकते हो? यस सर। बहुत ही चिल रहे, बहुत ही चिल। Let's just do it for this one. Okay, this is given to you, and the value of quantum Q is 1. The value of quantum Q is equals to 1. Calculate. कर पाओगे क्या? This is the Yes, homework sir. for you. यस Tomorrow सर। I would like to check this, whether you can calculate it or not. Everybody should solve this. Okay. So thank you so much. Have a great time ahead. Thank you, sir.